Welcome everybody. We are discussing the second chapter of class 9, Is Matter Around Us Pure? So in this chapter, we have already discussed different some of the methods of physical methods of separations till now, and this is the last session of this chapter. In this session, we'll discuss the left out methods of physical methods of separation of mixtures, under which we'll discuss about separation of miscible liquids, fractional distillation, separation of gases from air, centrifugation, then cleaning water for drinking. Okay. Now let us first discuss the separation of miscible liquids. Miscible liquids means the liquids which are totally mixed with one another. Okay, uniformly they are mixed. As I was telling you in my previous session, I was discussing about the separation of the immiscible liquid. I was talking about the separation of kerosene and water, which are not miscible. Okay, but here we'll discuss about the miscible liquids, how to separate them. So this process is used to separate two liquids which are miscible, and this method is known as distillation. Distillation method is used to separate two liquids which are miscible, means they mix into each other in all proportions and form a single layer when put in a container. In this method, we start heating a liquid to form vapor, then cooling the vapor to get back liquid. The liquid obtained by the condensing the vapor is called distillate. I am going to show you the diagram. This process is used for those liquids which have sufficient difference in their boiling point. तो यहाँ पर हम किस मिक्सचर को हम सेपरेट करने जा रहे हैं? दो लिक्विड जो अच्छी तरह एक दूसरे के साथ मिक्स हुए हैं, लेकिन उन दोनों में एक डिफरेंस होना जरूरी है. उनके बीच जो दो लिक्विड है, वो दोनों में आपका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, that should be different and sufficient difference should be there. So इसका प्रिंसिपल क्या है? On what principle this distillation will work? The distillation works upon the difference in boiling point of the two liquids present in a mixture, and the difference of boiling point should be more than 25 Kelvin. Now, what is the process of distillation? How it takes place? Let me explain it with this diagram. So here we have taken a mixture of acetone and water. Acetone is a liquid and water is also a liquid. But when in this mixture, you cannot identify the boundaries of acetone and boundary of water. So we cannot separate these two liquids by separating funnel. Then how to separate them? We can separate it by distillation, because these two liquids are having different boiling points. So the boiling point of acetone is more than 25 Kelvin less than the water. So what is the boiling point of water? Boiling point of water is 100 degrees Celsius. That means 373 Kelvin. So acetone, its boiling point is 25 Kelvin less than the water. Okay, even more than 25 Kelvin less than that of water. तो अभी हम क्या करेंगे? इसको हम गर्म करेंगे. कितना गर्म करेंगे? 100?
या 75 डिग्री सेल्सियस। ऑब्वियसली हम पहले इसको क्या करेंगे, 75 डिग्री सेल्सियस में हम इसको बॉईल करेंगे। तो अभी जब हम उसको 75 डिग्री सेल्सियस में बॉईल करेंगे तो क्या होगा, आपका वाटर वेपर में कन्वर्ट नहीं हो सकता, बिकॉज वाटर नीड्स 100 डिग्री कॉन्स्टेंटली 100 डिग्री सेल्सियस फॉर गेटिंग इवेपोरेटेड। लेकिन आपका एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट 75 डिग्री सेल्सियस है, तो 75 डिग्री में आपका जो एसीटोन है वो वेपर होने लगेगा। तो यहाँ आपका एक थर्मोमीटर लगा हुआ है ताकि आपका ये कितना बॉयल हुआ, बॉइलिंग पॉइंट चेक करने के लिए। अगर ज्यादा हो गया तो हमको यहाँ से ये जो लैंप है या फिर आपका जो सोर्स ऑफ हीट उसको हटा देना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका 75 डिग्री सेल्सियस में एसीटोन इवापोरेट होगा। इवापोरेट होके इसके लिए तो हमने यहाँ से कॉर्क से बंद कर दिया, तो देन इट विल मूव इन द साइड ट्यूब। ठीक है, तो ये साइड ट्यूब में द वेपर ऑफ एसीटोन विल मूव, बट व्हाट विल हैपन, ये एसीटोन को हम एक कंडेंसर के थ्रू पास कराएंगे। कंडेंसर क्या होता है, कंडेंसर इज ए डिवाइस in which continuously the water is circulated, जिसमें कि आपका कोल्ड वाटर सर्कुलेट होता रहता है। देखो यहाँ से सोर्स ऑफ कोल्ड वाटर इज देयर एंड हियर वाटर आउटलेट। यहाँ से कोल्ड वाटर हम सप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ कोल्ड वाटर ऐसे सर्कुलेट करके फिर यहाँ से वाटर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये कोल्ड वाटर की क्या जरूरत है, ये एसीटोन अभी वेपर यहाँ पर आ रहा है। अभी जब हम कोल्ड वाटर इसको, कोल्ड वाटर को इसके चारों तरफ, ये ट्यूब के चारों तरफ कोल्ड वाटर को हम पास कराएंगे, रोटेट कराएंगे, सर्कुलेट कराएंगे, तो क्या होगा, ड्यू टू द कोल्ड टेम्परेचर द वेपर ऑफ द एसीटोन विल बी लिक्विफाइड, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा ड्यू टू कंडेंसेशन, एंड नाउ यू कैन कलेक्ट द लिक्विड एसीटोन। तो हमको प्योर एसीटोन हमको यहाँ मिल गया। तो यहाँ क्या रह गया आपका, व्हाट इज लेफ्ट हियर, द water is, only water is left. So this is the method of distillation. So this is based on the difference in boiling point of the two liquids which are present in a mixture. Now the next method of the physical method is fractional distillation. This method is bit complicated. So this also depends upon, this method also depends upon the difference in boiling point of the liquids. Okay, and you might have studied in class 8 the oil refineries, petroleum ka jo product, how we get those products in the oil refineries. By fractional distillation we are getting the different products in the oil refineries. Okay, तो यहाँ पर आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है, प्रोसेस क्या है, व्हाट इज इट्स प्रिंसिपल, लेट मी फर्स्ट टेल यू। Fractional distillation is a process of separating two or more miscible liquids by distillation. The distillate being collected in the fractions boiling at different temperature. यहाँ क्या कर रहे हैं हम, it is similar to distillation, लेकिन अगर यहाँ पर more than two liquids are there, दो से ज्यादा लिक्विड है, तो हमको डिफरेंट टेम्परेचर में बॉयल करना है, so that we will collect the liquids in fractions. Okay, when the boiling point difference between two miscible liquid is less than 25 Kelvin, हम डिस्टिलेशन कब करते हैं, जब डिफरेंस 25 केल्विन से ज्यादा होता है। बट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में जब उनका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 केल्विन से कम होता है, तब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड करते हैं। Okay, in this process, except distillation apparatus, a fractionating column is fitted in between distillation flask and the condenser. आपको जो मैंने डिस्टिलेशन का apparatus दिखाया इससे पहले, वही apparatus यहाँ काम करता है, बट यहाँ पर एक एक्स्ट्रा डिवाइस लगा रहता है जिसको कहा जाता है fractionating column. Okay, a simple fractionating column has a glass beads
These beads provide surface for vapor to cool and condense rapidly. Okay? तो ये आप देखो एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन apparatus आप देख सकते हो, ये पूरा डिस्टिलेशन की तरह apparatus की तरह ही है। ये हमारा जो फ्लास्क है राउंड बटन फ्लास्क जिसमें मिक्सचर लिया है, मिसिबल लिक्विड्स का मिक्सचर। यहाँ पर हम क्या किए थे, आपका थर्मोमीटर डायरेक्टली हम इस फ्लास्क में अटैच किए थे थ्रू द कॉर्क। लेकिन यहाँ पर हमारा अभी क्या अटैच किए हम, एक फ्रैक्शनेटिंग कलम। फ्रैक्शनेटिंग कलम के अंदर बीड्स होते हैं और यहाँ पर हमने थर्मोमीटर को लगाया है टेम्परेचर को पता करने के लिए। देन एज यूजुअल आपका यहाँ कंडेंसर है जिसके थ्रू आपका कोल्ड वाटर विल बी सर्कुलेटेड टू कूल डाउन टू कंडेंस द vapor that will come out of this fractionating column and the liquid will be collected here. Okay, so this is the setup, the fractional distillation apparatus. Okay, so this diagram is often asked in the exam. Now what are the steps involved in fractional distillation? You heat the mixture of two or more substances, that is liquid, with different boiling points to a high temperature. And heating is usually done with high pressure, that is steam, to temperatures of about 1112 degree Fahrenheit to 600 degree, that is Fahrenheit, or 600 degree Celsius. This is, I am talking about the fractional distillation of the petroleum to get the petroleum product, ठीक है, और in oil refineries, ठीक है. Next, the mixtures boils forming vapor. Most substances go into the vapor phase. The vapor enters the bottom of a long column, जो मैंने बताया आपको fractional distillation column, and that is filled with trays or plates. मैंने इससे पहले आपको जो दिखाया सेटअप दिखाया उसमें बीड्स जो कि सिंपल होता है, ठीक है. लेकिन यहाँ पर मैं आपको ऑयल रिफाइनरी का स्टेप्स दिखा रही हूँ. सो यहाँ आपका डिफरेंट ट्रे होते हैं या डिफरेंट प्लेट्स होते हैं उस कॉलम के अंदर, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम के अंदर, और उस ट्रे में बहुत सारे होल्स होते हैं और बबल्स कैप कहा जाता है उसको, ठीक है. बबल कैप मतलब थोड़ा लूज कैप, ठीक है, लूज कैप. लाइक आपने देखा होगा सोडा बोतल में एक ग्लास का जो बल होता है वो दिया जाता है, तो उसी तरह एक लूज कैप होता है टू अलाउ द वेपर टू पास थ्रू, उसके थ्रू वेपर पास कर पाएगा. They increase the contact time between the vapor and the liquid in column and help to collect liquids that forms at various heights in the column. There is a temperature difference across the column, hot at the bottom and cool at the top. ठीक है? So let me explain you with the help of diagram so that it will be clear to you how the more than two liquids are separated by fractional distillation when their boiling point is difference in boiling point is less than 25 Kelvin. Yes, this is the fractionating column. ये एक fractionating column. यहाँ देखो आपका फर्नेस, यहाँ नीचे फर्नेस लिखा हुआ है. फर्नेस में क्या किया जाता है, आपका जो क्रूड ऑयल हमको जो रॉक से मिला है, सेडिमेंट से मिला है, उसको हम बोलते हैं क्रूड ऑयल, ठीक है, जिसमें सारे मिक्सचर मिलावट है, ठीक है. उस क्रूड ऑयल को हमने हीट किया. अभी हीट करने के बाद ये जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का डिजाइन ऐसे होता है, मैंने जैसे बोला आपको यहाँ पर ट्रे होते हैं. सो दीज आर द ट्रेज और द प्लेट्स. ये प्लेट्स में आपका यहाँ लूज बल्ब्स आर देयर, ओके, यहाँ होल्स है, दीज आर द होल्स, ठीक है. तो आपका जब यहाँ से हीट किया जाता है फर्नेस से, जब यहाँ लिक्विड हॉट लिक्विड आता है, यहाँ सबसे ज्यादा ये चैम्बर में आपका टेम्परेचर वेरिएशन होता है. सबसे नीचे वाले पार्ट में आपका ज्यादा हॉट होता है. एज यू मूव अपवर्ड धीरे धीरे इसका टेम्परेचर कम होता जाता है,
ठीक है। तो अभी आपका क्या होगा, ये इसमें जो लिक्विड है, जब आपका टेम्परेचर कम होता है तब क्या होगा, when the temperature it is heated at 60 to 100 डिग्री सेल्सियस, तब आपका जो नाफ्था है, नाफ्था will be removed because it will be evaporated and it will be condensed through these holes. ये जो holes के through condense होगा, vapor will move and then here it will be condensed and it will be removed. ठीक है। तो 60 to 100 डिग्री सेल्सियस में आपका नाफ्था सेपरेट हो गया। उससे ज्यादा टेम्परेचर हुआ उसके नीचे वाले ट्रे में, तो यहाँ तक जब आएगा आपका केरोसिन सेपरेट हो जाएगा। फिर यहाँ से आपका यहाँ तक जब आएगा डीजल 250 टू 350 डिग्री सेल्सियस में आपका डीजल सेपरेट हो जाएगा। लुब्रिकेटिंग ऑयल वो आपका सेपरेट हो जाएगा 300 टू 370 डिग्री सेल्सियस में। फिर यहाँ आपका जो है आपका जो फ्यूल ऑयल है, जैसे हम पेट्रोल वगैरह यूज करते हैं, वो आपका सेपरेट होगा यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पे या फिर आप बोल सकते हो यहाँ गैसियस, हमारा जो नेचुरल गैस होता है, नेचुरल गैस भी यहाँ पर हम कलेक्ट कर सकते हैं एट 370 टू 600 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या हो रहा है, दो पार्ट हो रहा है। जो लिक्विड है, जो लिक्विड पार्ट में है वो जम जाएगा इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में, और जो इवापोरेट होगा वो इवापोरेशन जो वेपर है इट विल मूव थ्रू दिस ट्रे, और जब टेम्परेचर कम होगा, कम टेम्परेचर में ये वेपर में कन्वर्ट होगा एंड दैट विल बी सेपरेटेड। तो इसी तरह आपका यहाँ देखो कितने सारे मिक्सचर आपके सेपरेट हो गए। सो दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड हियर the principle is based on the difference in the boiling temperature of the miscible liquids, and the boiling temperature should be less than 25 Kelvin. Okay. Now we'll discuss the some of the other points regarding this fractional distillation. The vapor, as I told you, the vapor rises in the column. As the vapor rises through the tray in the column, it cools due to the presence of the openings or the holes. When a substance in the vapor reaches a height where the temperature of the column is equal to that substance boiling point, it will condense to form a liquid. ठीक है। जिसे जैसे मैंने आपको यहाँ बता रही हूँ, यहाँ से आपका पूरा वेपर हो गया, पूरा जो चीज को वेपर होना था वो वेपर हो गया क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है। लेकिन वो कंडेंस कब होगा, ये देखो, ये इतने टेम्परेचर में ये कंडेंस हो जाता है। ठीक है। तो ये पहले नाफ्था कंडेंस हो गया और लिक्विड होकर निकल गया। इतने टेम्परेचर में आपका केरोसिन कंडेंस हो जाता है, केरोसिन कंडेंस हो गया और ये निकल गया। और इतने टेम्परेचर में आपका डीजल कंडेंस हो जाता है। तो पहले सारी चीजें वेपर हो जाता है and as it moves upward it cools down and condense one by one and collected separately. Okay. Now so this is the principle, and the trays collect the various liquid fractions. The collected liquid fractions may pass to condenser which cool them further and then go to storage tank, or they may go to other areas for further chemical processing. Fractional distillation is useful for separating mixture of substances with narrow difference in boiling point, as I have told you earlier, no less than 25 Kelvin, and is the most important step in the refining process. Now the next method of separation, that is separation of gases from air. You know that air is a homogeneous mixture of gases and can be separated into its constituents by fractional distillation. Okay. So I am giving you here the flow diagram showing different steps of the process. So here you can see this is air, which is a homogeneous mixture of the different gases, that is nitrogen, oxygen,
argon, carbon dioxide. So all these gases are present in the air. Now when this air is compressed and cooled by increasing the pressure and decreasing the temperature, then we get the liquid air. Now this liquid air can be warmed off, and different liquid air can be collected by fractional distillation by heating. Okay, so this, after getting into liquid air, you can understand how they get separated by fractional distillation. Okay, more clearly I have given you here, you can understand, that is here एयर में क्या होता है, डस्ट भी होता है, तो पहले हम उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेट देते हैं, जो कि आपका बड़े बड़े फैक्ट्रीज में लगता है, जो आपका जो वहां से स्मोक निकलता है, स्मोक से पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से पहले डस्ट को निकाल देते हैं, कार्बन पार्टिकल्स को निकाल के फिर उस धुआं को छोड़ते हैं। ठीक है, तो इसी तरह हम पहले क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से पहले जो डस्ट होते हैं, डस्ट को सेपरेट करेंगे, उसके बाद हमको मिलेगा डस्ट फ्री एयर। अभी उससे हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करेंगे। उसको कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए आपको क्या जरूरत है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो अभी हमारा जो एयर है, उस एयर में अभी कार्बन नहीं है, और उसमें हमारा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, कोई भी कार्बन का कोई भी ऑक्साइड नहीं है। ठीक है, और उसमें डस्ट भी नहीं है। अभी हम उसको क्या करेंगे, वाटर वेपर अगर उसमें है तो हम उसको रिमूव करेंगे थ्रू कंडेंसेशन। कंडेंस करेंगे हम उसको, -25 डिग्री में कंडेंस करेंगे, तो वो आपका कंडेंस हो जाएगा एंड वाटर वेपर विल बी रिमूव, वो लिक्विड हो जाएगा, और बाकी सब अभी गैसियस स्टेट में है, तो ये लिक्विड होके आपका निकल जाएगा। अभी हमारा जो एयर है वो क्या है, डस्टलेस, ड्राई, वाटर वेपर नहीं है, एंड कार्बन ऑक्साइड भी नहीं है। अभी हम उसको क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे एट हाई प्रेशर, अबाउट 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर, एंड कूल करेंगे। ओके, उसको लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर में हम जब उसको कंप्रेस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका लिक्विड एयर। अभी ये लिक्विड एयर को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हीट करेंगे, फिर हीट करने से आपका जब फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के थ्रू पास होगा, धीरे धीरे आपका एज पर इट्स बॉइलिंग पॉइंट द नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड अदर नोबल गैसेस, नियॉन, आर्गन, हीलियम, ये सब धीरे धीरे आपका सेपरेट होने लगेंगे। सो दिस इज हाउ द constituents of air get separated. Okay, now the other method is your centrifugation. If we have a mixture of fine suspended particle in liquid, we can separate it through filtration, but that is time consuming. ठीक है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगेशन में अगर करेंगे तो अच्छी तरह हम उसको सेपरेट कर सकते हैं, और वेरी लेस टाइम में भी हम उसको सेपरेट कर सकते हैं, एंड फॉर दैट पर्पस वी यूज सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, जैसे हम आपको मिल्क के बारे में बताए थे, milk can be separated, the constituents of the milk can be separated by centrifugation. So centrifugation is done by a machine called centrifuge. I'll show you the diagram. And it is a method of separating the suspended particle of a substance from a liquid in which the mixture is rotated at high speed in a centrifuge. I will show you the diagram so that it will be clear to you. इसका principle क्या है? As the mixture rotates in the centrifuge rapidly, a force acts on heavier suspended particle in it and brings them down to the bottom, and the clear liquid being lighter remains on the top. तो ये किस बेसिस पे सेपरेशन होता है, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। जो डेंस पार्टिकल होते हैं दे कम डाउन, दे सेटल डाउन, एंड जो लेस डेंस होते हैं वो टॉप में रह जाते हैं। सो बाय दिस मेथड, एक कॉमन एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। दिस प्रोसेस इज यूज्ड टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम द मिल्क। मिल्क से जो क्रीम निकालते हैं, इसी मेथड से आपका सेपरेट होता है।
ये देखो आपको मैंने बताया एक रोटर होता है, दिस इज ए रोटर, ठीक है। ये रोटर बहुत रैपिडली घूमता है, जैसे 5000 रोटेशन पर मिनट, एक मिनट में 5000 टाइम्स ये रोटेट करता है। तो इसका एक होल्डर होता है, वो होल्डर में टेस्ट ट्यूब अटैच्ड होते हैं। देखो यहाँ पर आप देख सकते हो ये टेस्ट ट्यूब है। ये टेस्ट ट्यूब में हमने मिक्सचर लिया है लिक्विड जिसमें कि सस्पेंडेड पार्टिकल्स है। अभी इसको जब हाई स्पीड में हम रोटेट करेंगे, इसमें एक ऐसा फोर्स क्रिएट होगा जिसके वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसके वजह से क्या होगा, आपका जो डेंस पार्टिकल है, जो हैवी पार्टिकल है वो बॉटम में आ जाएंगे और जो लाइट पार्टिकल है ऊपर रह जाएंगे। तो अभी देखो ये सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद हमने ये टेस्ट ट्यूब निकाला और ये आप देख सकते हो ये टेस्ट ट्यूब में किस तरह सेटल हुआ है। ये ब्लड का सेंट्रीफ्यूगेशन का, जैसे आपका ब्लड टेस्ट के लिए दिया जाता है ना, उसमें हमको कभी कभी ब्लड का प्लाज्मा की जरूरत होती है, कभी ब्लड सेल की जरूरत होती है, आरबीसी की जरूरत होती है। तो इसी तरह सेपरेट किया जाता है। अगर हमको सिर्फ आरबीसी चाहिए तो हमको ये सिर्फ नीचे वाला हिस्सा लेना है, हमको अगर प्लाज्मा चाहिए तो ये ऊपर वाला हिस्सा लेना है। इसी तरह ब्लड का सेपरेशन किया जाता है। तो यहाँ देखो आपका रेड ब्लड सेल का डेंसिटी सबसे ज्यादा होता है, तो रेड ब्लड सेल सबसे नीचे जम गया है। उसके ऊपर आप देख सकते हो प्लेटलेट, ये प्लाज्मा में प्लेटलेट काफी मात्रा में है। और ये जो है आपका जिसमें कम प्लेटलेट है उस तरह का प्लाज्मा है, ठीक है। तो ये डिफरेंट लेयर बनाते हैं जिसके वजह से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। एंड इट्स प्रिंसिपल इज, द सेपरेटिंग प्रिंसिपल is that the substances, the suspended particles are separated on the basis of their densities. Higher is the density, they will settle down, and more is the density, uh, the less is the density, they will remain at the top of the test tube. Now this is the last topic of this chapter, that is cleaning water for drinking. वाटर में भी आपका तरह तरह की चीजें मिक्स होते हैं, काफी सारे मिनरल्स होते हैं, काफी सारे सॉल्ट होते हैं और काफी सारे इम्प्यूरिटीज भी होते हैं। तो हम उसको क्लीन करते हैं फॉर ड्रिंकिंग पर्पज, जैसे हम कोई एक्वागार्ड यूज करता है, कोई आरओ में आरओ यूज करता है। बट ये ड्रिंकिंग वाटर घर में सप्लाई करने से पहले एक आपका म्युनिसिपैलिटी उसको पहले प्यूरिफाई करता है, क्लीन करता है, फिर घर में छोड़ता है, फिर हम उसको अल्ट्रा क्लीन करके पीते हैं, ठीक है। सो टू हैव क्लीन वाटर वी नीड टू पास द वाटर ऑब्टेन फ्रॉम लेक और रिवर थ्रू ए लॉन्ग प्रोसेस, इट इज गिवन एज बिलो। इसमें जो प्रोसेस है उसमें बहुत सारे टैंक्स होते हैं, जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, सेडिमेंटेशन टैंक, ये पहला टैंक होता है जहां पर आपका हेवी इम्प्योर पार्टिकल्स अगर है तो वो सेटल डाउन हो जाएगा। जैसे आपका बालू वगैरह मिक्स हुआ है वाटर में, तो अगर हम उसको वाटर को अगर स्टेबल रख देंगे तो क्या होगा, वो बालू नीचे बैठ जाएगा, सेटल हो जाएगा। सो ये सेडिमेंटेशन टैंक का वही काम है, ठीक है। उसके बाद है लोडिंग टैंक। लोडिंग टैंक में क्या है, उसमें एलम, जो फिटकिरी बोलते हैं, फिटकिरी मिक्स होता है, जो कि वाटर में सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं उसको सेटल डाउन करा देता है, ठीक है। हम घर में भी ये फिटकिरी यूज करते थे पुराने जमाने में। हमने देखा है, माय मदर वाज यूजिंग दिस अलम टू प्यूरिफाई द वाटर। अगर मड है उसमें तो हम उसको अगर थोड़ा सा अलम मिक्स कर दे तो सारे मड नीचे सेटल डाउन हो जाते थे। और उसके बाद उसको दैट वाटर आफ्टर getting separated from the suspended particle, it is passed through the filtration tank. फिल्ट्रेशन टैंक में 3 लेयर होते हैं, एक है फाइन सैंड का, उसके बाद कोरस सैंड का और टाइनी स्टोन का। सो व्हेन वाटर पासेस थ्रू देम इट इज फर्दर क्लीन। आपको पता है जितना छोटा छोटा पार्टिकल्स होते हैं वाटर में वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। आपका जो सैंड, टाइनी स्टोन, बड़ा सैंड, छोटा सैंड का जो सरफेस होता है उस सरफेस में सारे चिपक जाते हैं सारे इम्प्यूरिटीज। उसके बाद वाटर को छोड़ा जाता है क्लोरीनेशन टैंक में, जिसमें कि क्लोरीन मिक्स होता है वाटर में और उसमें जो जर्म्स होते हैं, जर्म्स जो पैथोजेंस, बैक्टीरिया या फिर आपका जो कोई फंगस वगैरह होते हैं उसको मार डालता है आपका
chlorine. Okay, and now the water is sent to the home. Here I will show you the diagram. आप ये देखो, ये है रिजर्वर लेक है या पॉन्ड है या फिर आपका जो रिवर है, वहां से वाटर कलेक्ट हुआ. सबसे पहले सेडिमेंटेशन टैंक, जहां पर आपका जो हेवी पार्टिकल है सेटल हो गया, फिर ये नीचे सेटल हो गया, इसीलिए ऊपर से पाइप के थ्रू ऊपर वाला का जो प्योर क्लीन वाटर है उसको भेजा गया दूसरे टैंक में. यहाँ पर एलम मिक्स हुआ, एलम से क्या हुआ, सस्पेंडेड पार्टिकल सेटल हो गया. फिर सस्पेंडेड पार्टिकल सेटल हो जाने के बाद वाटर और थोड़ा क्लीन हो गया, उसको हम छोड़ दिए फिल्ट्रेशन टैंक. फिल्ट्रेशन टैंक में मैंने जैसे बताया फाइन सैंड, कोर्स सैंड, देन आपका ग्रेवल्स. ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, वाटर इसमें जब वाटर पास करेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, आपका जितने छोटे छोटे और छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं, इम्प्योरिटीज होते हैं, ये सब इसके बीच जो गैप है उस गैप में रह जाता है, ताकि वाटर आपका और भी फिल्टर हो जाता है. देन इट इज पास्ड थ्रू क्लोरिनेशन टैंक. तो ये क्लोरिनेशन टैंक में क्लोरीन के साथ ये मिक्स होता है वाटर, सो दैट द बैक्टीरिया आर किल्ड, जर्म्स आर किल्ड. उसके बाद उस पानी को घर में छोड़ दिया जाता है. ठीक है, तो दिस इज हाउ द वाटर इज प्यूरिफाइड एंड देन सेंड टू द होम फॉर ड्रिंकिंग पर्पस. ओके, so this is the end of this chapter, and I hope you like this, the explanation of the whole chapter, all my sessions. Thank you for watching my video. Thank you.